Hello everyone and welcome back to K. Gutte's online lecture series. So you are here with myself Dr. K.W. Gutte, your course educator. We have started Waiting for Visa. This is an autobiographical text by Dr. B.R. Ambedkar, and we have completed first part of this autobiographical text, and that was A Childhood Journey to Koregaon Becomes a Nightmare. This was the first part or the first chapter of this autobiographical text, and in this video lecture we are going to discuss the second part of this autobiographical text, Waiting for Visa, and second part is Back from the West and Unable to Find Lodging in Baroda. This is the second part. In this second part, Dr. B.R. Ambedkar has discussed one incident that had happened in the state of Baroda when he returned from foreign, and what was that incident, how he had in trouble due to his lodging, due to his staying place. We'll find so many things in this chapter. So in opening lines of this autobiographical text, that is Back from the West and Unable to Find the Lodging in Baroda, what he says: I had been sent to America by His Highness the Maharaja of Baroda for higher education. In 1916, I had returned to India. I had been sent to America by His Highness the Maharaja of Baroda for higher education. 1916 में डॉक्टर अंबेडकर फॉरेन से लौट आए और उन्हें बड़ौदा स्टेट के महाराजा उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेजा था, उन्होंने उनके एजुकेशन को स्पॉन्सर किया था. आई स्टडीड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क फ्रॉम 1913 to 1917. In 1917, I came to London and joined the postgraduate department of School of Economics of University of London. In 1918, I was obliged to return to India without completing my studies. 1917 में वो लंदन गए थे उनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, जो उन्होंने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और 1918 में वो उनको आना पड़ा, भारत में फिर एक बार आना पड़ा. उसके पहले उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1913 से 1917 तक पढ़ाई की थी, एंड उनको वापस आना पड़ा. Since I had been educated by Baroda state, I was bound to serve the state. Accordingly, on arrival, I straightway went to Baroda. The reason why I left Baroda service are quite irrelevant to my present purpose. I do not therefore wish to enter into them. I am only concerned with my social experiences in Baroda, and I will confine myself to describing them. जैसे कि तय हुआ था, फॉरेन से पढ़ाई करने के बाद वो बड़ौदा में आकर उनकी सर्विसेज देंगे, और इस तय शर्त के मुताबिक वो सीधा फॉरेन से लौटने के बाद बड़ौदा आए, और वहाँ पे उन्होंने बड़ौदा स्टेट के लिए अपनी सर्विसेज देनी चाहिए, और इसलिए वो बोलते हैं कि वहाँ पे उन्हें क्या क्या सामाजिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा, इसके बारे में वो बोलते हैं और बताते हैं. My 5 years of staying in Europe and America had completely wiped out of my mind any consciousness that I was untouchable, and that an untouchable wherever he went in India was a problem to himself and others. So he had been in Europe and America, but he had not faced any problem due to his caste. But when he touched India, he started to face problems due to his caste, and he had forgotten about his untouchability in Europe and America. But when he arrived in India, he had to face so many problems due to his untouchability and due to his caste.
जब वे विलायत से भारत पहुंचे, क्योंकि विलायत में रहने के बाद उनके मन से और स्मृति से ये बात निकल चुकी थी कि वो एक अछूत है, सो कॉल्ड अनटचेबल है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। और यहाँ आने के बाद उनको फिर से वही एहसास हुआ कि वो एक अनटचेबल है। बट when I came out of this station, my mind was considerably disturbed by a question, where to go and who will take me. I felt deeply agitated. अभी ये एहसास उनके मन में है कि वो एक अनटचेबल है, और जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए तो उनके मन में एक ही सवाल था कि where to go, कहाँ जाऊँगा, and who will take me, कौन मुझे रहने के लिए जगह देगा। This was the question in his mind. Hindu hotels called Vaishis, I knew they would not take me. The only way of seeking accommodation therein was by impersonation, but I was not prepared for it because I could well anticipate the dire consequence which were sure to follow if my identity was discovered, as it was sure to be. और जब हिंदू होटल्स को विशिष्ट ऐसा कहा जाता था और उन्हें लगता था कि हिंदू होटल में उनको जगह नहीं मिलेगी, और अगर वो भेस बदल के भी रहते हैं, इम्पर्सोनेशन के साथ भी रहते हैं, तभी कुछ देर बाद उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, और उस परिस्थिति का वो सामना नहीं करना चाहते थे, और वो श्योर थे कि दे विल नॉट एक्सेप्ट हिम टू एकोमोडेट इन द होटल्स। I had friends in Baroda who had come to America for study. Would they welcome me if I went? I could not assure myself. They may embraced at admitting an untouchable into their household. I stood under the roof of the station for some time thinking where to go and what to do. उनके कुछ दोस्त थे जो बड़ौदा से ताल्लुक़ रखते थे, उनके साथ अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए थे। उनको लगा कि वो शायद उनके पास जा सकते हैं, बट ही कुड नॉट बी एश्योर्ड अबाउट दैट दे विल एक्सेप्ट हिम फॉर द एकोमोडेशन और नॉट। एंड he stood there under the roof of station. Dr. Ambedkar stood there under the roof of station for some time and he was thinking where to go and what to do. और वो सोचने पर मजबूर थे, और वो वहाँ पे सोचने लगे कि अब वो कहाँ जा सकते हैं। It then struck me to inquire if there was any place in the camp. All the passengers had by this time gone. I alone was left. Some hanky drivers who had failed to pick up any passengers were watching and waiting for me. और वो सोचने लगे, he was thinking whether he could go to the camp or whether he can go to any place where he would be acceptable for the accommodation. And he was alone there on the railway station, and there were some hanky drivers, there were some drivers of the carriage and who had failed to pick up any passengers, and these drivers of the carriage were watching and waiting for Dr. Babasaheb Ambedkar. He says, I called one of them and asked him if he knew if there was a hotel in the camp. He said that there was a Parsi inn and that they took paying guests. Hearing that it was an inn maintained by the Parsis, my heart was gladdened. And Dr. Babasaheb Ambedkar called one of that carriage drivers. So that driver said that there is a Parsi inn in the area of camp, and these people, Parsi people, allow some paying guest. ऐसा उन्होंने बोला कि एक जो कैरेज है, गाड़ी वाला है वहाँ पे, उनको उन्होंने बोला, जो गाड़ी वाले अभी तक जो पैसेंजर का इंतज़ार कर रहे थे, उनमें से एक ड्राइवर को उन्होंने बुलाया और पूछा कि कैंप एरिया में कोई रहने के लिए जगह है। तो उस कैरेज ड्राइवर ने, गाड़ी वाले व्यक्ति ने उनको बताया कि एक पारसी इन है, पारसी सराय है, वहाँ पे
वो पेइंग गेस्ट बोल के रह सकते हैं। और ऐसा सुनने के बाद उनको थोड़ा सा आनंद हुआ, क्योंकि पारसी लोग, उन्हें लगा कि शायद वो छूत अछूत मानते नहीं होंगे, कास्ट सिस्टम मानते नहीं होंगे, स्पेशली अनटचेबिलिटी मानते नहीं होंगे, ऐसा उनको लगा। द पारसीज आर फॉलोड ऑफ द Zoroastrian religion. There was no fear of my being treated by them as untouchable because their religion does not recognize untouchability. With a heart glad with hope and a mind free from fear, I put my luggage in hanky carriage and I asked the driver to drive me to Parsi Inn in the camp. पारसी लोग जो ज़ोरेस्टर को मानते हैं और उनको लगा कि शायद वो अनटचेबिलिटी को मानते नहीं है और ये एक रिलीजन है, जो ऐसा एक धर्म है, ऐसे उन्हें लगा कि वो अनटचेबिलिटी फॉलो नहीं करते। एंड विद द हार्ट ग्लैड विथ होप अ माइंड फ्री फ्रॉम फियर, अभी उनके मन से ये चिंता मिट गई कि उनको रहने के लिए जगह मिलेगी या नहीं। तो उन्होंने सीधा उस कैरियज ड्राइवर को बुलाया और उनसे पूछताछ करने के बाद वो सीधा निकल पड़े वो पारसी इन की तरफ, जो कैंप एरिया में था। द इन वॉज अ 2-storied बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ विच लिव्ड एन ओल्ड पारसी with his family. He was a caretaker and supplied food to the tourists who came there to stay. The carriage arrived and the Parsi caretaker showed me upstairs. I went up while the carriage driver brought up my luggage. I paid him and he went away. I felt happy that after all I had solved my problem of finding a place to stay. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस कैरियज में वहाँ पे आते हैं और वो एक 2 मंजिला इमारत थी, पारसी इन, पारसी सराय, ये जो बिल्डिंग थी वो एक 2 मंजिला इमारत है और नीचे एक उनका जो केयर टेकर है, पारसी इनका जो केयर टेकर है, देखभाल करने वाला व्यक्ति, वो वहाँ पे रहता है अपने फैमिली के साथ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पेड टू कैरियज ड्राइवर एंड ही लेफ्ट. When Dr. Baba Saheb Ambedkar came upstairs and he was undressing as he wanted to be at ease. अभी वो कुछ कपड़े बदल रहे थे. In the meantime, the caretaker came with a book in his hand, seeing as he could well see from my half undressed state that I had no sadra or kashti, the two things which prove that one of a Parsi. In a sharp tone he asked me who I was. अब जब वो अभी कपड़े बदल रहे थे तभी वहाँ पे वो केयर टेकर आता है और देखता है कि जो हर पारसी व्यक्ति के पास एक सदरा और काष्टी, ये 2 प्रकार के जो क्लोथ्स रहते हैं वो उनके पास नहीं थे, और उसने पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि एक आइडेंटिटी है पारसी व्यक्ति की जिसके पास वो काष्टी और सदरा रहता ही है. Not knowing that this inn was maintained by the Parsi community for the use of Parsis only, I told him that I was Hindu. क्योंकि वो पारसी इन थी और पारसी लोगों के लिए रहने के लिए जगह थी और दूसरे लोगों के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं थी. और उसने पूछने के बाद अंबेडकर जी ने कहा कि वो एक हिंदू है. And that caretaker was shocked and told me that I could not stay in the inn. I was thoroughly shocked by his answer and was cold all over. The question returned again where to go. और जब ये कहने के बाद कि वो एक हिंदू है तो केयर टेकर ने उनको कहा कि वो वहाँ पे नहीं रह सकते. ये सुनने के बाद उनको सदमा पहुंचा कि अब उनके सामने एक सवाल है, प्रश्न है कि वो जाए तो कहाँ जाए, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम दैट ही कुड नॉट बी एक्सेप्टेड एनीवेयर बिकॉज ऑफ हिज अनटचेबिलिटी. Compromising myself, I told him that though a Hindu, I had no objection to staying there if he had no objection. He replied, how can you? I had to maintain register for all those who stay here in the inn. I saw his difficulty.
I said I could assume a Parsi name for the purpose of entering it in the register. Why do you object? If I do not object, you will not lose, you will earn something if I stay here. And when he had the question that where to go, at that time that caretaker says it is very difficult him to accommodate there because he has to maintain the register. And Dr. Babasaheb Ambedkar says that if he had no objection, whether he had an objection about it, but that caretaker says that he has to maintain the register, and in that register he has to write the name of the person who accommodate there. Why do you object? If I do not object, you will not lose, you will earn something if I stay here. और वो बोलते हैं कि अगर मुझे कोई शिकायत नहीं, तुम्हें कोई शिकायत नहीं, तो तुम कुछ यहाँ से तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा तुम्हें कुछ फायदा हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला. और डॉक्टर अंबेडकर जी ने बोला कि आई विल एज्यूम द नेम ऑफ पारसी if you have no objection. I could see that he was inclined favorably. Evidently, he had had no tourist for a long time and he did not like to forego the opportunity of making little money. He agreed on condition that I pay him ₹1.50 per day for board and lodging and enter myself as Parsi in his register. और बहुत दिनों से वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आया हुआ था और बहुत दिनों से वो वैसे ही खाली पड़ा था और बहुत दिनों के बाद कोई व्यक्ति वहाँ रहने के लिए आया है. अंबेडकर जी ने उनको एक ऑफ़र दिया कि वो पारसी नेम धारण करके वहाँ पे रह सकते हैं और उसके बदले में वो उसे कुछ ज़्यादा पैसे देंगे. और उस केयरटेकर ने बोला कि उनका दिन का जो खर्चा होगा ₹1.50 अगर वो देते हैं और पारसी नाम लिखने के लिए रजिस्टर में तैयार होते हैं तो शायद वो उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे सकता है. क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि रहने के लिए उनके पास कोई छत नहीं था और इसलिए उनको ये चीज़ करनी पड़ी. एंड ही एग्रीड on condition that I pay him ₹1.50 per day for a board and lodging and enter myself as a Parsi in his register. He went downstairs and I heaved a sigh of relief. The problem was solved and I felt very happy. But alas, I did not then know how short was to be this happiness. But before I describe the tragic end of my stay in this inn, I must describe how I passed my time during the short period I lived therein. और इस तरह से उनको वहाँ रहने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन वो जो आनंद था, वो जो उनका आनंद था वहाँ पे उनको रहने की इजाज़त मिली है, इसका वो कितने दिन रहेगा इसका उन्हें पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था. लेकिन अभी तो उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ. ही वॉज हैप्पी फॉर टाइम बीइंग एंड ही डिड नॉट नो दैट वेदर ही वुड बी able to stay there for long time or not. And meantime he was passing the time there. He discusses, Dr. Babasaheb Ambedkar discusses about the time he was passing there during the time he lived there at Baroda. The inn on the first floor had a small bedroom and adjoining it was one small bathroom with a water tap in it. The rest was one big hall. At the time of my stay, the big hall was filled up with all sorts of rubbish, planks, benches, broken chairs, etc. In the midst of these surroundings, I lived, a single solitary individual. The caretaker came up in the morning with a cup of tea. He came again about 9:30 at morning with my breakfast or morning meal. A third time he came up at about 8:30 in the evening with my dinner. The caretaker came up only when he could not avoid it, and on these occasions he never stayed to talk to me. The day was spent somehow. और
इस प्रकार से वहाँ पे वो रहने लगे। वो जो फर्स्ट फ्लोर था, ऊपरी मंजिल थी, वहाँ पे एक बेडरूम था, बेडरूम को अटैच एक छोटा सा बाथरूम था और बाथरूम में एक नल भी था। देयर वाज अ वाटर टैप इन इट। द रेस्ट वाज वन बिग हॉल, और वहाँ पे एडजॉइनिंग एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, जैसे कुछ तख्ते पड़े हैं, बेंचेस है या ब्रोकन चेयर्स है, टूटी हुई कुर्सियां है, मेज है, ऐसा कुछ सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर वो अकेले ऐसे शख्स थे जो वहाँ पे रह रहे थे और दूसरा कोई भी व्यक्ति उनके साथ वहाँ पे नहीं था। केयरटेकर सुबह चाय लेकर आता था, फिर 9:30 बजे सुबह उनका नाश्ता लाता था और उसके बाद शाम को 8 बजे वो खाना लेकर उनके पास आता था। बाकी समय वो उनके पास आता नहीं था और उनसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था, और ऐसे करके डॉक्टर अंबेडकर वहाँ पे समय बिता रहे थे। I was appointed as a probationer in the Account General's officer by Maharaja of Baroda. I used to leave the inn about 10 at morning for the office and return late at about 8 in the evening, contriving to while away outside the inn as much time in company of friends as I could. The idea of returning to the inn to spend the night therein was most terrifying to me, and I used to return to the inn only because I had no other place under the sky to go for rest. बड़ौदा में महालेखागार ऑफिस में उनको एक अकाउंटेंट की नौकरी मिली थी, जो महाराजा, जो बड़ौदा के महाराजा है, उन्होंने उनको नौकरी दिलाई थी। सुबह 10 बजे वो ऑफिस के लिए निकलते थे और शाम को 8 बजे वो वापस उस जगह आते थे, और बीच में वो कुछ दोस्तों के साथ समय व्यतीत करते थे। और उनको वहाँ पे वो जो पारसी इन थी वहाँ पे वापस आने को मन तो नहीं करता था, लेकिन उनके पास दूसरा कोई सहारा नहीं था जहाँ पे वो अपनी रात बिता सकते थे, और इसलिए मन में नहीं होते हुए भी वहाँ पे वो शाम को आते थे। इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी जगह नहीं थी, फिर भी वहाँ उनको रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे रह रहे थे। In the big hall on the first floor of the inn, there were no fellow human beings to talk to. I was quite alone. The whole hall was enveloped in complete darkness. There were no electric lights, nor even oil lamps to relieve the darkness. The caretaker used to bring up for my use a small hurricane lamp. Its light could not extend beyond few inches. और जो वो पारसी इन थी, पारसी सराय था, वहाँ पे वो रहने लगे, और वहाँ पे उनके सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं था जिससे वो बातचीत कर सके, जिनके साथ वो समय बिता सके। और वो पूरा जो ऊपरी मंजिल थी वो वहाँ पे पूरा अंधेरा छाता था रात को, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइट्स की व्यवस्था नहीं थी। केयरटेकर एक छोटा सा दीपक लेके आता था और जिसकी रोशनी कुछ इंच ही जाती थी, और इस तरह वो अकेले ही उस डरावनी जगह, रात को उन्हें डर लगता था फिर भी वो वहाँ पे रहते थे। I felt that I was in dungeon and I longed for the company of some human being to talk to, but there was no one. In the absence of the company of human beings, I sought the company of books and read, absorbed in reading, I forgot my lonely condition. और वहाँ पे वो जो जगह थी उनको जैसे वो जेल है ऐसे महसूस होता था, क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ बोलने के लिए कोई शख्स वहाँ पे हो जिससे वो बात कर सके, लेकिन वो वहाँ पे अकेले ही थे। He was alone there. There was no other human being to talk to, but he started reading books, reading books. So he forget his loneliness. But the chirping and the flying of bats, which had made
hall their home often distracted my mind and sent cold shivers through me, reminding me of what I was enduring, to forget that I was in a strange place under strange conditions. और वहाँ पे चमगादड़ों का आवाज़ आता था रात को, और उससे वो घबरा जाते थे, और उनको लगता था कि फिर से उनको ये महसूस होता था कि वो अकेले शख्स वहाँ पे है, जो वो वहाँ पे उस अवस्था में वो रहते हैं जहाँ पे कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन चमगादड़ वहाँ पे रहते थे उनके साथ, जहाँ पे उन्होंने जैसे उनका बसेरा बसा लिया था वो बैट्स ने. Many a time I must have been angry, but I subdued my grief and my anger through the feeling that though it was a dungeon, it was a shelter, and that some shelter was better than no shelter. So heart rendering was my condition that when my sister's son came from Bombay bringing some remaining luggage which I had left behind, and when he saw my state, he began to cry so loudly I had to send him back immediately. In this state I lived in Parsi Inn, impersonating a Parsi. बहुत बार उनको खुद पे ही गुस्सा आता था, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते थे क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, और वो एक ऐसे हालात में वहाँ पे रह रहे थे. खुद की आइडेंटिटी उन्होंने चेंज कर दी है, एज ही वॉज इम्पर्सनेटिंग एज अ पारसी, और उन्होंने एक पारसी व्यक्ति की आइडेंटिटी धारण करके वहाँ पे वो रह रहे थे. जब उनके बहन का बेटा कुछ सामान लेके बम्बई से वहाँ पे आया और उसने वो हालात देखे तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और इसलिए अंबेडकर जी ने उनको इमीडिएटली वापस भेज दिया. I knew that I could not long continue this impersonation, as I would be discovered someday. I was therefore trying to get a state bungalow to stay in, but Prime Minister did not look upon my request with the same urgency. My petition went from officer to officer, and before I got the final reply, the day of my doom arrived. उनको पता था कि वो बेस बदल के या नाम बदल के वहाँ पे उस पारसी इन में, पारसी सराय में रह तो रहे हैं, किसी दिन उनका ये धोखा सामने आने वाला है, ऐसा उनको लग रहा था. इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में वो उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी कि उन्हें एक स्टेट बंगलो मिल जाए रहने के लिए, लेकिन उनकी अर्जी एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के तरफ जा रही थी और उनको कोई फाइनल आंसर वहाँ से नहीं मिल रहा था. लेकिन उनको एक आशा थी कि वहाँ पे शायद उनको कुछ रहने के लिए नया घर या नया बंगला मिल जाएगा. लेकिन वो दिन आ गया जिस दिन उनका ये धोखा सामने आने वाला था. It was the 11th day of stay in that inn. I had taken my morning meal and had dressed up and was about to step out of my room to go to office. As I was picking up some books which I had borrowed overnight for returning them to the library, I heard footsteps of considerable number of people coming up the stairs. I thought they were tourists who had come to stay and was therefore looking out to see who these friends were. डॉक्टर अंबेडकर अभी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, अभी निकलने वाले थे. अभी वो सुबह 10 के आसपास का समय था. उन्होंने ड्रेसअप किया और अपने रूम में उनके जो किताबें थे जो कल लाइब्रेरी से उन्होंने लाए थे और आज उनको वापस करना था, वो किताबें वो उठा रहे थे. तभी जो ऊपर कुछ लोग आने की आवाज़, सीढ़ियों से कोई लोग ऊपर आ रहे हैं ऐसे आवाज़ उनको कुछ आया, और उन्हें लगा कि शायद ये टूरिस्ट होंगे, शायद ये कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे रहने के लिए आते होंगे. और कौन वो लोग हैं देखने के लिए वो सामने आते हैं. Instantly I saw a dozen angry looking tall sturdy Parsis, each armed with a stick, coming towards my room. I realized that they were not fellow tourists and they gave proof of
it immediately. और वो सामने आकर देखते हैं तो उन्हें एक सदमा लगता है, शॉक लगता है कि ये कोई टूरिस्ट नहीं है। बहुत गुस्से में कुछ पारसी लोग, बहुत लंबे चौड़े पारसी लोग, उनके हाथ में लाठी डंडे हैं और वो उनके रूम की तरफ ही आ रहे हैं और उन्हें ये महसूस हुआ कि ये शायद टूरिस्ट नहीं हो सकते। They lined up in front of my room and fired a volley of question. Who are you? Why did you come here? How dare you to take a Parsi name? You scoundrel! और उन्होंने कुछ सवालों की झड़ी लगाई और वो पूछने लगे, they were asking a question, who are you? तुम कौन हो? Why did you come here? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? How dare you to take Parsi name? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक पारसी नाम पे यहाँ पे रहने की? You scoundrel! उन्होंने उनको बदमाश ऐसे कहा, स्काउंड्रल कहा। You have polluted the Parsi inn, और तुमने इस पारसी इन को, पारसी सराय को गंदा कर दिया है, ऐसा वो कहने लगे। I stood silent. I could give no answer. I could not persist in impersonation. It was in fact a fraud, and that fraud was discovered, and I am sure if I had persisted in the game I was playing, I would have been assaulted by the mob of angry and fanatic Parsis and probably doomed to death. My meekness and my silence averted this doom. One of them asked when I thought of vacating. और उन लोगों ने उनसे बहुत सारे सवाल किए और उन्होंने उनसे भला बुरा कहा और डॉक्टर अंबेडकर कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि उनका जो ये फ्रॉड है, उनका जो धोखा है, वो खुद ही बोलते हैं कि वो सामने आ चुका था, जिसका उन्हें अंदाज़ा था वो चीज़ हुई और वो अब कुछ कह भी नहीं सकते थे। वो सिर्फ चुप और खामोश रहे और उनके बाद एक व्यक्ति ने उनको बोला, पूछा कि एट दैट टाइम माई शेल्टर आई प्राइज्ड मोर देन माई लाइफ। और उस समय उनके जान से ज़्यादा वो शेल्टर नहीं था। द थ्रेट इम्प्लाइड इन दिस क्वेश्चन वॉज अ ग्रेव वन। और उन्होंने पूछा कि तुम ये जगह कब खाली करने वाले हो। इस सवाल में एक धमकी भरा अंदाज था। द थ्रेट इम्प्लाइड इन दिस क्वेश्चन वॉज अ ग्रेव वन। I therefore broke my silence and implored them to let me stay for a week at least, thinking that my application to minister for a bungalow would be decided upon favorably in meantime. और उन्होंने कहा कि उनको एक हफ्ते का समय दिया जाए ताकि उनकी जो अर्जी है, जो मिनिस्टर को उन्होंने की है, वो शायद अर्जी पे कुछ विचार विनिमय होने के बाद उनको शायद कुछ बंगलो रहने के लिए मिले। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या वो उन्हें एक हफ्ते की मोहलत दे सकते हैं। बट द पारसीज वेयर इन नो मूड टू लिसन। दे इशूड एन अल्टीमेटम। और ये पारसी लोग कुछ सुनने के मूड में नहीं थे और उन्होंने उनको अंतिम चेतावनी दी कि वो शाम तक उस पारसी सराय में नजर नहीं आने चाहिए। ऐसे उन्होंने अल्टीमेटम उनको दे दिया। दे मस्ट नॉट फाइंड मी इन द इन द इवनिंग, आई मस्ट पैक ऑफ। दे हेल्ड आउट द डायर कॉन्सिक्वेंसेस एंड लेफ्ट। और उन्होंने ये चेतावनी देकर और उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये जगह नहीं छोड़ी तो उसके गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे और इसके लिए तुम तैयार रहो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। और ये धमकी उन्होंने देके और उन्होंने ये कह के वहाँ से वो चले गए। I was bewildered, my heart sank within me, I cursed all and wept bitterly. After all, I was deprived of my precious possession, namely my shelter. It was no better than the prisoner's cell, but to me it was very precious. और वो फूट फूट कर रोने लगे और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो कुछ रहने के लिए जगह थी यही उनके लिए बहुत प्रेशियस प्लेस था। लेकिन वो जगह एक जेल से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें वो चीज़ बहुत अनमोल, वो जगह उनको बहुत अनमोल लग रही थी क्योंकि कोई दूसरा उनको रहने के लिए जगह नहीं दे रहा था। और
उनका दिल बैठ गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। After the Parsis were gone, I sat for some time engaged in thinking to find a way out. I had hopes that I would soon get a state bungalow and my trouble would be over. My problem was therefore a temporary problem, and I thought that going to friends would be a good solution. I had no friends among the untouchables of Baroda state, but I had friends among other classes. और वो सोच रहे थे कि इससे वो कैसे बाहर निकले, ये जो समस्या है इससे वो कैसे बाहर निकले। और जब तक उन्हें स्टेट बंगलो नहीं मिलता तब तक वो सोच रहे हैं कि क्या वो किसी मित्र के पास रहने के लिए जा सकते हैं, लेकिन बड़ौदा के अनटचेबल कम्युनिटी से उनके कोई मित्र नहीं थे, और जो कुछ उनके मित्र थे वो हिंदू या क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे। One was a Hindu and other was Indian Christian. I first went to Hindu friend and told him what had befallen me. मेरे ऊपर क्या बीती है ये उन्होंने जाकर उस हिंदू मित्र को बताया जिसके पास वो चले जाते हैं। He was a noble soul and a great personal friend of mine. He was sad and also indignant. He, however, let fall one observation. He said, "If you come to my home, my servants will go." I took that hint and did not press him to accommodate me. और जब वो इस हिंदू मित्र के पास जाते हैं जो अच्छे हृदय का व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति है, उसके पास वो जाते हैं जो उनका एक अच्छा मित्र है। इफ़ यू कम टू माई होम माई सर्वेंट्स विल गो। अगर तुम मेरे घर में रहने आओगे तो मेरे पूरे नौकर मेरे घर से चले जाएंगे। और एक उन्होंने इशारा दे दिया कि उनके कहने का आशय वो समझ गए और उन्होंने ज़्यादा उनको ठहरने के लिए इंसिस्ट नहीं किया या उनको उसके बारे में कुछ आगे उन्होंने कहा नहीं। I did not like to go to Indian Christian friend. Once he had invited me to go and stay with him, but I had declined, preferring to stay in Parsi Inn. My reason was that his habits were not congenial to me. और वो जो उनका क्रिश्चियन फ्रेंड है उनके तरफ उन्होंने जाने का टाला क्योंकि उस फ्रेंड के और उनकी आदतें अलग अलग थी। सो आई वेंट टू माई ऑफिस बट आई कुड नॉट रियली गिव अप दिस चांस ऑफ फाइंडिंग अ शेल्टर। ऑन कंसल्टिंग अ फ्रेंड आई डिसाइडेड टू गो टू हिम and ask him if he would accommodate me. When I put the question, his reply was that his wife was coming to Baroda next day and that he would have to consult her. जब वो ऑफिस गए और उन्होंने वो बंगलों के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि अभी भी वो काम नहीं हुआ। फिर उनके दूसरे मित्र के सलाह के बाद वो फिर से वो क्रिश्चियन मित्र को पूछने के लिए अपना मन बनाते हैं और उसको पूछते हैं। तब वो मित्र उसे बोलता है कि ही हैज़ टू कंसल्ट विथ हिज वाइफ, कि उसे उसके लिए जो उसकी बीवी कल आने वाली है और अगर वो वहाँ पे उनके घर में रहने के लिए जगह चाहिए तो उसके बीबी को उसे कंसल्ट करना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा, ऐसे वो बोलता है। I learned subsequently that it was a very diplomatic answer, and he and his wife came originally from family which was Brahmin by caste, and although on conversion to Christianity the husband had become liberal in thought, the wife had remained orthodox in her ways and would not have consented to harbor an untouchable in her house. और बाद में उनको पता चला कि उस क्रिश्चियन दोस्त की बीबी एक ब्राह्मण परिवार से थी और धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो एक कट्टर महिला है और वो एक अछूत व्यक्ति को अपने घर में स्थान नहीं देगी, ऐसा उनको बाद में पता चला। The last ray of hope thus flickered away. It was 4 p.m. when I left the house of my Indian Christian friend, and where to go was one supreme question before me. I must quit the inn and had no friend to go to. The only alternative left was to return to Bombay. उस क्रिश्चियन दोस्त को बात करके वो वहाँ से निकलते हैं तो लगभग 4 बज चुके थे और दूसरा कोई उनका दोस्त नहीं था जिसके पास वो जाते। अभी उनके पास
बॉम्बे या बम्बई जाने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। द ट्रेन टू बॉम्बे लेफ्ट बड़ौदा एट 9 PM. There was 5 hours to be spent. Where to spend them? Should I go to inn? Should I go to my friend? और अभी 4 बजे है और बॉम्बे या बम्बई जाने की उनकी जो रेलगाड़ी है वो 9 बजे की है, शाम के 9 बजे की है। अभी 5 घंटे उनको वहाँ पे बिताना था, तो अभी 5 घंटे वो कहाँ पे ठहरते? Where to spend them? Should I go to inn? Should I go to my friend? वो सोचने लगे क्या मैं वो पारसी इन पे वो 5 घंटे बिताऊं या किसी दोस्त के पास जाऊं, ऐसे वो सोचने लगे। I could not muster up sufficient courage to go back to inn. I feared the Parsis might come and attack me. I did not like to go to my friend. Though my condition was pitiable, I did not like to be pitied. और उनके पास धाड़स नहीं था कि वो फिर से वो पारसी इन पे चले जाए, क्योंकि शायद वो पारसी लोग उनके ऊपर अटैक करने के चांसेस थे, ऐसा उन्हें लगा। और किसी दूसरे दोस्त के पास भी वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन वो दया के पात्र नहीं बनना चाहते थे। I decided to spend the 5 hours in public garden which is called Kamathi Bagh on border of the city and camp. I sat there partly with a vacant mind, partly with sorrow at the thought of what had happened to me and thought of my father and mother, as children do when they are in forlorn condition. और वो कुछ अनमनस्क भाव से वहाँ पे उस बाग में एक गार्डन है जिसका नाम है कामाठी बाग। उस गार्डन में जो कैंप और वो गांव के बीच में रास्ते पे लगता है, वो गार्डन में वो जाके बैठते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोचने लगे कि उनके माता पिता जब वो बच्चे थे, डॉक्टर अंबेडकर जब वो बच्चे थे अपने माता पिता के बारे में सोचने लगे कि उन दिनों के बारे में और 72 दिनों के बारे में उन्होंने बैठकर वहाँ सोचा। At 8 PM, I came out of the garden, took a carriage to the inn and brought down my luggage. The caretaker came out, but neither he nor I could utter a word to each other. He felt that he was in some way responsible for bringing him into trouble. I paid him his bill. He received it in silence and I took his leave in silence. लगभग 8 बजे उन्होंने एक गाड़ी करके या कैरियज करके वो पारसी इन पे चले गए। उन्होंने अपना सामान नीचे लाया और केयर टेकर को पैसे दिए, उनके जो पैसे या उनका जो रहने का भाड़ा था उन्होंने वो दिया, पे किया। और दोनों भी एक दूसरे से एक शब्द भी वो बोल नहीं पा रहे थे कि उस केयर टेकर को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जी के इस हालात के लिए वो जिम्मेदार है। And he received that money in silence and Dr. Ambedkar took his leave in silence. I had gone to Baroda with high hopes. I had given up many offers. It was wartime. Many places in Indian educational services were vacant. I knew very influential people in London, but I did not seek any of them. I felt that my duty was to offer my services first to Maharaja of Baroda, who had financed my education, and here I was driven to leave Baroda and return to Bombay after stay of only 11 days. वो बहुत आशाएं लेकर आए थे बड़ौदा में और उन्हें अपनी सेवाएं देनी थी बड़ौदा के महाराजा को, क्योंकि उन्होंने उनको लंदन भेजा था उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन उनको कुछ दिनों में ही 11 दिनों में ही मुंबई या बम्बई उनको लौटना पड़ा। दिस सीन ऑफ डजन पार्सिस आर्म्ड विथ स्टिक्स लाइंड बिफोर मी in a menacing mood and myself standing before them with a terrified look imploring for mercy is a scene which so long a period as 18 years has not succeeded in fading away. I can even now vividly recall, and I never recall it without tears in my eyes.
आज भी 18 साल के बाद जब वो ये जीवनी लिख रहे थे तब वो सोचते हैं कि आज भी मैं उस वाक्य के बारे में सोचते हैं जिस दिन वो पारसी सराय में कुछ पारसी लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर उनके सामने खड़े थे, और वो जो सीन वो जब याद करते हैं तो उनको आज भी वो सीन बिना आंखों में आंसू हुए वो याद नहीं आता, और जब जब वो उसके बारे में सोचते हैं तब तब उनके आंखों में आंसू होते हैं। It was then for the first time that I learned that a person who is an untouchable to Hindu is also an untouchable to Parsi। और उस दिन जीवन में उन्होंने पहली बार ये समझा कि जो आदमी हिंदू के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत है। The man who is untouchable to Hindus is also untouchable for Parsis। So this is the reality, this is the naked reality of the society, contemporary society, that the people from the lower caste in Hindu religion were treated inhumanly by the people. At Baroda, he had experienced a very dangerous situation. He might have been killed by the Parsis when he was impersonating as a Parsi, and he had no other way than to live there as a Parsi because he had no shelter there to stay. His friends also rejected to stay with them, and that's why he had no other way than to stay in that Parsi inn, assuming a Parsi name। इस दूसरे अध्याय में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब वो बड़ौदा आए थे। जब वो विलायत में थे तो उनको उनकी जाति का एहसास तक उनके दिमाग से निकल चुका था, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पे जब फॉरेन से आते हैं और रेलवे स्टेशन पे आने के बाद उनको भारत में इस चीज़ का एहसास होता है कि वो एक अनटचेबल है, और आगे जाके बड़ौदा में उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटित होती है। और स्पेशली वो जब पारसी सराय में आते हैं, पारसी इन पे आते हैं, तो उनको रहने के लिए उनका नाम बदलना पड़ा, और बाद में जब पारसी लोगों को पता चला कि एक अनटचेबल व्यक्ति अपना नाम बदल के वो पारसी इन में रह रहा है, तो उनको उन्होंने धमकाया, डराया और वहाँ से निकल जाने के लिए मजबूर किया। एक हफ्ते की मोहलत भी उन्होंने उनको नहीं दी। तो ये सारे जो वाक़या है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में घटित हो चुके थे, और इसका बड़ा महत्व है कि उन्होंने ये बहुत करीब से देखा कि इतना उच्च शिक्षित आदमी भी इन लोगों के द्वारा कैसे सताया जाता है और कैसे उनको अवहेलना सहनी पड़ती है लोगों से। इसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने विस्तृत बताया है। In another video lecture we will discuss pride, awkwardness and dangerous accident in चालीसगांव। और इसका जो तीसरा अध्याय है उसमें हम चालीसगांव का एक वाक्य है जो उन्होंने अपने इस वेटिंग फॉर वीज़ा इस जीवनी में उन्होंने बताया है। चौथा अध्याय एक दौलताबाद का है और वो एक पानी से रिलेटेड है। और पांचवें पार्ट में उन्होंने बताया है कि डॉक्टर रेफ्यूजेस टू गिव प्रॉपर केयर एंड यंग वुमन डाइज। कि पांचवें अध्याय में उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर जो उच्च शिक्षित डॉक्टर है उन्होंने एक अछूत महिला को उपचार देने से मना कर दिया और उसके वजह से वो मर जाती है। और लास्ट पार्ट जो है उसमें A young clerk is abused and threatened until he gives up his job। और आखिरी अध्याय में उन्होंने बताया है कि एक क्लर्क जो उच्च शिक्षित है या जिसने शिक्षा प्राप्त की है उसको कैसे अपनी जॉब या अपना काम छोड़ने के ऊपर मजबूर किया जाता है, इसके बारे में ये लास्ट पार्ट है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, तो देखते रहिए ये मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि बाकी विद्यार्थी भी इसको जान सके, इसकी पढ़ाई कर सके या इसको समझ सके। और अगर आपको और इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो की इंटीमेशन या नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you very much for watching this video.